people as here, same, okay? And I've been here in AIM Global for the past 6 years, and I started my journey way back 2013. And my journey itself is not so easy, guys. But then, if you are really persistent to do this business, nothing is impossible, and that's what I have did. Okay, so right now I've been part of the Millionaire Circles Club. I am already a global ambassador, and I've been a top earner for the past 4 years, 4 consecutive years here in the whole UAE. And my last achievement was top four of the whole UAE. Okay, uh, I'm not here to brag, but we are here to inspire each and every one of you, most especially to all the beginners, and most especially for those who are also an OFW like us. Okay, so bear in mind with this, guys. Here in Dubai or wherever you are here in this world, we don't stay here permanent. One day, whether we like it or not, we're going back home to our country because we are only visitors in this area. So stay put, okay? We would like you to learn more on the business so that you can push through the business after the lockdown of this COVID-19. Okay? Abs Ismail, he is from Pakistan and want to hear from you, Abs Ismail. Cannot hear us. Please unmute your speaker. No sound. Hello, it's okay. Yes. Go ahead. Yeah, good morning to everyone. Assalamu alaikum. First of all, Ramadan Kareem to all. And my name is Muhammad Ismail. I'm working as an accountant here in Dubai from 2007. And I joined the business before because we all expect came here to for the earning money, and we have to be get for the financial situation. So when I saw this opportunity online, so I feel that this opportunity can change our life, and so I joined this business. Right now I am SC. I achieved my first award like silver executive, and then before last year, this year also I achieved the Philippine trip also. Uh, so actually, I hear to my Al Pakistani members, so I will explain to them in the Urdu language about the NDO. New, our topic is NDO, new distribution orientation. So I will translate to them in the Urdu language, so they can also know about the business. They can also learn about the business. Okay. Yes. We're waiting for Asmi to play the slide. Mhm. Okay, so this is me. My name is Aida Morales. I've been a global ambassador. This is UAE Top 9. That was 2018, I remember. Yeah, this is 2000. Okay, next up. So NDO means new distributors orientation seminar. So every one of us guys must has to learn
uh, and attend this kind of training for you to mold more on the business, because this is all about attitude. Next. Partner Ida, after you talking, as partner Yeah, assessment has to go with the order as well. and then partner Ismael. If you read this NDO and then pass. Yes, yes. Yeah. Okay, plan. Okay. So after it's partner Ismael, you can translate it now, please. Okay. So the company का नाम Alliance in Motion Global, ये MLM नेटवर्किंग कंपनी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने अपने बिजनेस को कैसे करना है, उसको कैसे एक्सपेंड करना है, और हमने हमारे कौन कौन से हमने स्टेप्स और कौन कौन से हायरमेंट और कौन कौन से काम हमने कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट और इसमें पैसा हम कर सकें। आप साइदा नेक्स्ट। Okay, so this is our rules. Okay, so turn off your mobile phone for a while. Okay, get your pen and paper and participate and absorb all the knowledge. Because listen, guys, if you're just listening and then you didn't put down in your notes, sometimes we forget. So the best thing is that for you to understand more, because repetition is the key. So right after you are here, okay, you must get a pen and paper and write down all the details, the good things that you can that you can learn from this training, so that even you are not here ready the training, at least you can repeat by yourself, and then it will absorb to your brain. Okay, thank you. ये हमारे रूल्स हैं कि अपना जो आपके पास फोन, अगर आपको उसको आप ऑफ कर दें ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है और आपका जो ध्यान है वो हमारे एंड के ऊपर है, और आप एक पेन पेपर साथ में रख लें ताकि जो जो पॉइंट्स हम आपको बताएंगे आप उसके ऊपर लिखते रहें। बात ये होता है कि हम जब कोई भी वीडियो सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हमारे वो जेहन में बैठ रही होती है, मगर कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है, उसका जो हमारे वो मेमोरी से याददाश्त से खत्म हो जाती है, हमें भूल जाती है। तो इसके लिए यह है कि जो जो पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि आप अपने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, आप उनको लिखते जाएं ताकि बाद में आप उसको रिपीट कर सकें, उसको याद कर सकें और आप उनके ऊपर भी अमल कर सकें। थैंक यू। Okay, Saida. Next. There are three keys to success. Okay, so sometimes the three keys is that you have to be confident. Okay, confident and convincing, because sometimes, you know, guys, you have to believe in yourself. Okay, because if you don't believe in yourself, who will believe you then? So the first thing first in ourselves is that we have to believe in ourselves, so that success comes will follow. Because sometimes if we think not so positive with this business, because we have to believe in the company, we have to believe in ourselves, we have to believe also on the product. Because if you don't believe alone with yourself, how can you endorse the company? How can you succeed in this business? So first thing first is that you have to understand that the key to success is that you have to believe in yourself. That's the first key. Okay, you must have the confidence that you can do this business. Okay, sometimes if we feel that we have got a lot of rejection outside there, sometimes if you endorse the business, that you are thinking that, oh, if I endorse this business to these people, maybe they don't accept it. If you are thinking like that, then means it's negative. You are already
absorbing the negativity in your life. So first thing first is that you have to think positive, and you have to think that you can do this kind of business so that you will get true success. Okay. यस, कामयाबी कामयाबी के लिए, किसी भी चीज में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप के ऊपर यकीन होना चाहिए। यकीन का मतलब यह है कि ये काम मैं कर सकता हूँ और मैं ये काम करूंगा, ये होना होना चाहिए यकीन। और जाहिर बात है, जब हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते और हम उस काम में नाकाम हो जाएंगे। तो हम कहते हैं ये कंपनी ठीक नहीं है, उसमें हम बहुत सारी उसमें बातें बनाते हैं, मगर असल में ये होता है कि हमें अपने के ऊपर यकीन नहीं होता, हम यकीन के साथ काम नहीं करते। तो सबसे पहले ये है कि हमें अपने को यकीन होना चाहिए कि ये काम है, बाकी जैसे और लोग काम कर रहे हैं और लोग इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं और वो बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये कामयाबियां हासिल कर सकता हूँ। अपने आपके जो दिल के अंदर खौफ है, जो आपके अंदर दिल के अंदर जो हिचकिचाहट है, उसको आपने खत्म करना है और अपने आप के ऊपर मुकम्मल तौर पे यकीन करना है कि ये जो काम है, बाकी जिस तरह बाकी और मेंबर कर रहे हैं, मैं भी ये काम कर सकता हूँ और मैं काम करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह नो डाउट के कामयाबी आपको आपके पास आएगी। साइदा प्लीज। Okay. So these are the three keys. Okay, this is next, knowledge, okay, hard work, and attitude. Okay, so they say networking is like a mathematical equation. If you know the answer, if you know the formula, you know the answer. Okay, so this is the knowledge. So knowledge and skills come 10%. Okay, so hard work and perseverance is 20%. And attitude is 70%. So you must have a good learning and listening attitude, because 70% is very big. Okay, even you work very hard, if your attitude is still the same, that it's not so good, you're not listening to your upline, you don't believe to yourself, you don't believe to your downlines, and you don't also believe to your upline, still you cannot succeed the success. Okay, even you have the knowledge. So supposed to be these three comes along together. Even if you have the knowledge, if you don't work hard, and even you have the attitude, you can still not get the success. Okay, so even you have this hard work and you don't have also the knowledge and you don't have also the attitude, it's still no use. So must be these three concepts will come together. Okay, Asma. जी जी, ये हमारे हमारे जो इसमें जो सबसे पहले वो हमारी जो तीन चीजें हैं इसमें कामयाबी के, इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, ना सिर्फ इस बिजनेस में बल्कि किसी भी फील्ड में, वो ये है कि नॉलेज हो, आपके पास उस चीज का इल्म हो, मुकम्मल तौर पे आप उस बिजनेस को जानते हो, और हार्ड वर्किंग के बगैर तो कोई काम मुमकिन नहीं है। जाहिर बात है, हमें उस काम के लिए में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। और एटीट्यूड एटीट्यूड हमारा वो होता है कि हमारा रवैया, कि हम उस काम को कैसे ले रहे हैं, ये सबसे चीज अहम है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि नॉलेज 10% है, हार्ड वर्किंग 20% और एटीट्यूड 70% है। इसमें एटीट्यूड को क्यों इतना ज्यादा किया, क्योंकि एटीट्यूड ही जाहिर करता है कि हम इस काम में, इवन कि आप कामयाबी आप उस टाइम पे हार्ड वर्किंग करेंगे जब आपका एटीट्यूड होगा, जब आपका दिल करेगा, जब आपके दिमाग में वो काम करने की आपकी ख्वाहिश होगी। ठीक है। और जब वो आपका एटीट्यूड उस काम के होगा, हम ये जानते हैं कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम हर सूरत में वो करके रहते हैं, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। हम इसको दूसरी जबान में हम कह सकते हैं डिसिप्लिन। जैसे कि हमने सुबह ऑफिस जाना होता है, जैसे भी हम रात को देर से सोए, हमारी तबीयत ठीक हो ना हो, जैसे भी हमने सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है और हम जाते हैं, तो ये होता है एटीट्यूड। ठीक है, हमने ये काम करना है, हमने ये बिजनेस करना है, हमने रोजाना उसको प्रॉपर टाइम देना है और उसके ऊपर हार्ड वर्किंग करनी है। और जाहिर बात है, इन तीन चीजों में से कोई चीज भी मिस होगी तो आप इस बिजनेस को नहीं परफॉर्म कर सकते, और जो कामयाबी आप चाहते हैं वो कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। सो इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको इसका जो प्रॉपर नॉलेज है कंपनी की, और इसकी जो प्रोडक्ट्स है, इसको जो सिस्टम है, उसका आपके पास कंप्लीटली आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसके आप इस
बिजनेस के लिए मेहनत करें, सख्त मेहनत करें। और एटीट्यूड, एटीट्यूड कि आपने ये बिजनेस करना है और आपको यकीन है कि ये मैं बिजनेस कर सकता हूँ और करूंगा, और आप इसको मुकम्मल तौर पे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें रखें, और आप इंशाल्लाह आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे। यस मिस्टर, यस अब साइदा। Actually, your level of success is determined by your level of discipline and perseverance. Okay, so you must always have a positive attitude. Okay, you don't have to be like this. Alam ko na yan means I know that everything. I know everything. Okay, so you have also to you must have also this winning attitude. Okay, so every morning when you wake up in the morning, you have to think always the positive way. Okay, always be grateful. Okay, always be thankful what you have in the morning, and always think the positive way when you wake up in the morning. And you must have always this winning attitude. Okay, as this man. As this man. No, it's mute. Cannot hear. देखते हैं कि बाज वो हमारा दिल में हम होता है यार पता नहीं हम जीत सकेंगे कि नहीं जीत सकेंगे, कुछ हो जाएगा, तो उसमें आप जरूर आपके हारने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो विनिंग एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, आप जैसे हमने स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर अतमाद करना चाहिए। अतमाद इसी चीज का नाम होता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, ये मैं काम करूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड में क्या फर्क होता है? पॉजिटिव होता है कि हमेशा आप कहते हैं ये बिजनेस मेरे लिए और मैं इस बिजनेस के लिए हूँ, ये मैं बिजनेस करके दिखाऊंगा और करूंगा। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप कहते हैं नहीं यार ये बिजनेस पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि इसमें ये मसला है ये मसला है, कि आप उसमें बहुत सारी चीजें निकालते हैं जो कि होती नहीं है। यह सब शायद। हेलो। Okay, alam ko na yan. Okay, I know that already. Listen to this. If you're applying, okay, this is not about your diploma. This is not about how high is your education. If your upline is only grade 6 and he or she is your upline, he is earlier than you in this kind of business, you still have to believe on her or on him because he knows more than you. Okay, so don't say that you know that already, you train already, you attend already this kind of training, because repetition is the key of all learnings. Because if you just attend one training, you cannot absorb everything. So you have to keep attending the training so that you can learn more and more and more. Okay? यस, ये इंग्लिश में है, AKNY अलम को नायान, ये फिलिपिनो में तगालो में है। इसका मतलब होता है कि मैं सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। ये सबसे जो बड़ी चीज होती है नाकामी की, वो यहीं से स्टार्ट होती है जब आदमी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, नॉलेज इंसान को इल्म हमेशा नई चीज इन्वेंट होती है, नई चीज आती है। ठीक है, और जब आप बिजनेस में एंटर हो रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि ये बिजनेस हमने कैसे करना है। तो ये नहीं, कभी भी जब आपके कोचेस, आपका अपलाइन और आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बताएं बिजनेस के मतलब, तो आपने ये नहीं कहना हम मुझे पता है, मैंने पहले किया हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस है। नहीं, देखें उसको, सुने। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो बताना चाह रहे होते हैं, हम कहते हैं ये हमें पता है, मगर वो हमें नहीं बताते, और वो चीजें बिल्कुल हमारे लिए नहीं होती हैं।
ठीक हो गया। ये जो एटीट्यूड होता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, ये चीज, ये एटीट्यूड आपको बिल्कुल इस बिजनेस में, बल्कि किसी भी बिजनेस में आपको नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा नई से नई चीज को सीखना चाहिए उसको, क्योंकि हो सकता है, बल्कि होता है ऐसे कि आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो, जाहिर बात है वो इस जगह पे पहुंचे होते हैं कि वो कामयाबी हासिल कर करके नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ इस जगह पे पहुंचे होते हैं, और वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहे होते हैं, आपको बताना चाह रहे होगे आप कैसे इस बिजनेस में कामयाब हो सकती हो। तो जब भी आप इस बिजनेस में आए और आप इसको बिजनेस को करना चाहें, तो हमेशा अपना एटीट्यूड ये रखें कि मैंने और सीखना है, मैंने, और हम रोजाना सीखते हैं, हम रोजाना सीखते हैं, हम रोजाना मुख्तलिफ वीडियो से, मुख्तलिफ आर्टिकल से, बुक से पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें नई से नई हमारे नॉलेज में, इल्म में आती है, उससे हमारा इल्म बढ़ता है। और जब आपका इल्म बढ़ेगा तो आपकी उतनी ही कामयाबी के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। यस, अब साइदा। Okay, so this is your belief. Okay, so you must believe in God. Okay, whatever your religion is. Okay, we know that there is one creator in heaven and earth. Okay, so believe in God, always be thankful to Him, always pray to Him. Okay, and then believe in the company. Okay, so when you started in this business, okay, first thing first, okay, you must know your deepest why you attend this kind of business, because your deepest why alone, okay, will let you go through your success, because your deepest why is the main reason why you always believe in this company. Okay, and then you must believe in the products. And when you believe in the products, for you to endorse the products to the other people, you must be a user first. Because if you are a user, it's easier for you to endorse the products to other people. Because if you are not a user, how can you introduce? How's if they ask you, is this kind of product is good? What is the components of this product? You don't know anything because you never use it. So first thing first, be a user before you will become a pusher of this kind of products. Okay? And then you must believe in the marketing plan. Especially now we are already in easy consumerism. All you have to do is, okay, when you endorse this products in the marketing plan, is that just ask them to change the brand. Just like toothpaste, if you are using Colgate, ask them to use our products because our product is 100% natural. Okay, and then by using the products, you are already earning. Okay, because there's an option with this in the marketing plan. And then you have to believe in your upline, as what I've told you just now. Okay, believe in your upline, believe in your downline, and then believe also in your crossline. Believe, and most especially believe in you. You know, guys, crossline can give so many things on you, because the thing is, sometimes the thing I know, you don't know. The thing also that you know, I don't know. So sometimes the good thing is that you have to build rapport also with the crossline, because you can get an idea to different teams. So sometimes you don't have to be greedy in sharing your knowledge to other people. Okay, so but the best thing is that if you just started this with the business, you must think and you put in your mind and in your heart that you really believe in yourself 100%. Okay, as Ismail. इसमें जो हमारा ये जो इसमें क्या मतलब, बिलीव का मतलब यकीन, हम सबको पता है। यकीन से ही सारा काम शुरू होता है। सबसे पहले यकीन खुदा के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वही खुदा है जिसने ये सारी कायनात बनाई और सारी कायनात को चला रहा है। ठीक हो गया। ये बिलीव बहुत जरूरी है। ये बिलीव, इसी बिलीव से जिंदगी शुरू होती है और इसी के साथ हमारी जिंदगी सारी चलती है। ठीक हो गया। जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, जब ये हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हमें सेम इस कंपनी के ऊपर बिलीव करना है, क्योंकि अगर आप कंपनी के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, आप कैसे किसी को कंपनी मतलब का बता सकते हैं, कैसे यकीन के साथ बता सकते हैं जब आपको खुद यकीन नहीं है।
और ये कंपनी 14 साल से मार्केट में है और रोज बे रोज इसका जो बिजनेस है वो इंक्रीज से इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी जो मार्केट है वो पूरी वर्ल्ड में फैलती जा रही है। और हमें पता है कि अगर कोई कंपनी फैलती है, अगर कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी हैं। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बिलीव होना चाहिए। और आप बिलीव उस टाइम पे करेंगे जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप इस प्रोडक्ट्स को किसी भी विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी हिचकिचाहट के बगैर इस प्रोडक्ट को यूज करें। मैंने खुद ये प्रोडक्ट यूज की हैं। आपने देखा होगा कि मुझे बोलते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई हैव गेट अ बिट stuttering while talking because when I joined this business, I have too much problem. Then I start the products, some supplements, especially say 24/7, and then thanks God, Alhamdulillah, right now I am 80 to 90% are okay. And just before in this year, I also awarded speaker UAE speaker purus certificate also. तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। और साथ में इसका मार्केटिंग प्लान के हम इस सिस्टम से कैसा पैसा, इस कंपनी से कैसा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो सारे लोग हैं ये इस कंपनी से पैसा कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कंपनी का जो पैसा कमाने का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही अच्छा है। और लास्ट 2020 में हमें इस कंपनी को अवार्ड भी मिला है सिंगापुर से। तो साथ में आपको हमें बिलीव करना पड़ेगा अपलायंस के ऊपर। जो हमारे अपलायंस हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने हमारे हमसे पहले बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है, जिनको हम बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनके थ्रू हमने ये कंपनी ज्वाइन की है और वो इस जगह पे पहुंचे हैं, और हमें भी हम उनके ऊपर बिलीव करेंगे और वो हमें बताएंगे, हमें गाइड करेंगे। साथ में हमारे डाउनलाइंस आपके एसेट्स होते हैं। आपकी वो वही लोग हैं जो आपके लिए अर्न करते हैं, जो आपके लिए इस बिजनेस में पैसा कमाते हैं। तो आपको उन अपने डाउनलाइंस के ऊपर पूरा यकीन करना होता है और वो आपके साथ भी पूरा काम करते हैं। और क्रॉस लाइन जितने आपके अपलाइन और डाउनलाइन आपके लिए अहम है, जरूरी उतने ही आपके क्रॉस लाइन भी जरूरी है। क्योंकि क्रॉस लाइन से आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखते हैं कि वो अपने अपने आप के लिए कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और क्या क्या वो स्टेप्स ले रहे हैं। तो आप वही चीजें करते हैं। और सबसे अहम बात, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। आपके अपने ऊपर यकीन करेंगे, जब तक आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यस अपलाइन। Next apply. So we go to proper matching. Okay. So next up. Who among you are using this ABC rule? Do you know what is the meaning of ABC? ABC means advisor. Okay. B stands for breeds and C stands for client. Meaning, let's say, because right now we are using in online, okay? So each and every one of us, we are making the group, okay? So we're in this group, wherein we put our clients inside to talk with each other, to build with each other, to mold them, and to let them understand what is this business. So the advisor is your client, okay? So the breeds is you who will bring the clients inside. So what you're going to do is just introduce, you as a breed, just introduce your clients to your advisor. And your advisor or your upline will be the one who will talk to the clients. You understand? That's what we're going to do with this ABC rule. That's the proper way. Even when you go to the office, okay? When you go to the office, when you meet your clients, and then you ask your, let's say, upline, can you help my clients to do that, for him to understand the business and everything? You must introduce it in a proper way. You must know that advisor or that upline. You must know the name. You must know what is the status. You must know what is the rank, so that these clients of yours will understand what is really going on. It's not just you sit there in the office and just say, upline, can you help me motivate this downline? It's not, that's not the way.
So you have to introduce it in a proper way. Okay, so this is the ABC rule. Aziz Milan. एबीसी रूल ये एक बहुत ही अहम असूल है इस बिजनेस में। जब आप इस बिजनेस में काम करते हो, ये बहुत ही अहम रोल है इसमें। ए बी सी ए का मतलब एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब है जो आपका कोच है, जो आपका सीनियर है, जो आपका अपलाइन है ना। नॉर्मली वो आपका अपलाइन होता है, जिसको ये बिजनेस कर रहा होता है, जिसको इस कंपनी का, इस बिजनेस का, प्रोडक्ट्स का सारा पता होता है। और सपोज आपके पास कोई आपका प्रोस्पेक्ट इनवाइट आता है, कोई दोस्त है, कोई आपका कुलीग है, कुछ भी है जिसको अपने ये बिजनेस प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपने अपने अपलाइन को बताना है कि आप मेरे इस बिजनेस मेरे इस दोस्त को, मेरे इस प्रोस्पेक्ट इनवाइट को, क्लाइंट को आपने बिजनेस बताना है। तो ये इसका असूल है, आपने कैसे दोनों को इंट्रोड्यूस करना है। तो आपने सबसे पहले अपने जो आपका क्लाइंट है, आपका क्लाइंट, उसको बताना है कि ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा सीनियर है, ये मेरा कोच है, ये इस बिजनेस में ऐसे ऐसे ये बिजनेस कर रहा है, इसकी ये अचीवमेंट्स हैं, ताकि आपके जो वो क्लाइंट्स है उसको आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर आपको उसको यकीन आए। ना कि आप उसको उल्ट करें कि हो सकता है आपका जो क्लाइंट है वो बहुत पढ़ा लिखा हो या वो बहुत अमीर हो, तो आप अपने उसको, अपने जो एडवाइजर है, जो आपका अपलाइन, उसको जाके आप बोल रहे हैं जी मेरा ये क्लाइंट है, ये बहुत अमीर है, ये ऐसे है, ये बहुत पढ़ा लिखा। आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने क्लाइंट को अपना एडवाइजर, अपना अपलाइन, ना कि एडवाइजर को अपना क्लाइंट, ठीक है। तो उससे पहले आप अपने अपलाइन को अपने क्लाइंट के मुतालिक आपने खुद इंफॉर्मेशन देनी है, मगर उससे सबसे पहले आपने अपने जो आपका जो क्लाइंट है उसको अपने अपलाइन के मुतालिक बताना है कि ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा सीनियर है, ये मेरा कोच है, इससे मैंने बिजनेस सीखा है, इसके थ्रू मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है और इसकी ये अचीवमेंट्स हैं, ठीक हो गया। ताकि आपके जो क्लाइंट है उसको आपकी कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर और आपके सीनियर्स के ऊपर यकीन हो, ठीक है। और फिर आपने अपने जो आपका अपलाइन है उसको अपने क्लाइंट के मतलब शॉर्ट शॉर्ट में उसकी थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। ये मेरा दोस्त है और ये बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा है, तो आप प्लीज इसको बिजनेस के मतलब थोड़ा बताएं। यस अपलाइन। Next ask. Okay, we must respect each and everyone. Respect the time of the other people. Okay, so because sometimes uh, with this one, okay, let's say you have a client. Okay, don't let the client wait for you. Okay, you must be the one who go first with that area and the time that you tell to the clients to be there, because sometimes uh, you are the one who asked them already the time and then you are the one who is late, so that's not good. So you have to respect with each other. Okay, so you have to put your time. Okay, make a plan as early as that. So if you have a client and you tell that you're going to meet tomorrow at 9 o'clock, you have to be there on time or before that time. Okay, so you have to respect the time of other people. Okay, respect also the emotion of other people, because in our time, in our life, especially in different nationalities, okay, we have different culture. Like right now it's Ramadan, so supposed to be mostly for the Muslim brothers and sisters, they are very solemn, so we have to respect their time, we have to respect also the emotion. Okay, so that there's no conflict, most especially in this business. Okay, ask. रिस्पेक्ट, इज्जत, इसमें ज़ाहिर ये बात है, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जगह पे हो, लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, तो ये रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट इज्जत बहुत अहम चीज होती है। आप इज्जत करें, और ये चीज वो चीज होती है, इज्जत हमने ये हासिल करनी होती है, कमाती हो कमानी होती है। कैसे हम इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह है कि आपका जो क्लाइंट्स है, आपने ये नहीं देखना कि वो उसकी एज, वो नौजवान है या बूढ़ा है, या वो अमीर है, गरीब है, या वो उसकी एजुकेशन है, या पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये नहीं देखना। आपने सबको इक्वली इज्जत देनी है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं आपका जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है वो इस बिजनेस
को देखने के बाद उसमें इंटरेस्टेड कितना ज्यादा होगा, शायद आपसे ज्यादा हो और वो आपसे ज्यादा काम करे। ठीक है, सबसे पहले ये इसमें है कि आपने अपने जो आपका जो क्लाइंट है उसको आपने इज्जत देनी है बगैर किसी तफरीक के। और दूसरा बात है टाइम। ये नहीं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपका इंतजार करे, नहीं, आपने हमेशा अपने क्लाइंट को टाइम, अपना प्रॉपर टाइम दें और टाइम से पहले वहां पे पहुंचे, ताकि आपके जो क्लाइंट है वो आपको उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो, यकीन हो कि हाँ आप इस बिजनेस में सीनियर हैं, आप इस बिजनेस में सीरियस हैं, तो आप सीरियस इस बिजनेस को कर रहे हैं और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके आने को, उसके मिलने को, उसकी जो आपकी मीटिंग है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसमें साथ में ये बिजनेस है ये इंटरनेशनली है, तो जाहिर बात है जब इंटरनेशनल बिजनेस है तो इसमें हर कंट्री के, हर कल्चर के, हर मजहब के, हर जगह के लोग आपसे मिलते हैं और बात करते हैं, और आपने उनकी जो आपका कल्चर है, उनका रिलीजन है, उनकी जो भी फीलिंग्स है, जो भी उनकी इमोशंस है, जो भी उनके ख्यालात हैं, ठीक है, आपने उनकी उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपने उन वो आपके लिए बिजनेस पार्टनर है, वो आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मेन चीज उनका आपका वो बिजनेस है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं और ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। और उनके उनके जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है उसको उनको रिस्पेक्ट दें, और उनके जो भी ख्यालात हैं, किसी भी वो फिरके से हैं, किसी भी वो जगह से हैं, किसी भी वो मुल्क से हैं, किसी भी मजहब से हैं, जो भी हैं आप उनको रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट दें, और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उनके ऊपर आप बिल्कुल भी किसी किस्म की बात करने से गुरेज करें, ठीक है, क्योंकि वो आपके मेन मेन आपका उनका काम बिजनेस ही होती है, बिजनेस है, तो कि वो आपके साथ एक कॉन्फिडेंस के साथ, अतमाद के साथ बिजनेस करें। That's यस अपलाइन। commitment. There are three kinds of commitments, guys. I will try, I will do my best, I will do whatever it takes. Which one are you there? Because if I will try, okay, meaning you are not confident that you're going to do your business, okay? I will do my best, still not okay. But if you say that I will do whatever it takes, even it's the end of your journey, you will do whatever it takes. Even you are alone. Because I remember when that was 2015, during when this another kind of business came along. Okay, I have also a session with my leaders, but then I tell to myself, I will never give up. I will do whatever it takes. I keep on moving forward, because in this kind of business, in this kind of commitment, guys, I'm telling you this, you must have to put in yourself 100%, because you must have to face challenges, you have to face failure, everything of this, you have to embrace it. Because if you don't know how to embrace failure, you will never succeed. Okay, so you have to do whatever it takes, even it takes 1 year, 2 years, 3 years for you to make the result. As long as you will never give up on your dreams, one day, sooner or later, if you believe in yourself, that you will meet your eagles along the way, it will happen. Because you believe already in God, right? You believe in yourself. You believe everything. So if you're confident and you are committed 100% in this business, nothing is impossible. Okay? Absolutely. यस, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है कि हम उस बिजनेस के साथ कितनी ज्यादा सीरियस हैं। तो बार बार ये होता है कि लोग जब उसके पास कोई भी, या हम बिजनेस प्रेजेंट करते हैं, ये हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ये कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और बार बार ये होता है कि आदमी कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया। अगर आप उस बिजनेस में थोड़ा सा आपको कोई रिजेक्शन आती है, कोई टेम्परेरी तौर पे आपको कोई फ्लॉप आता है, तो फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यही होता है कि नहीं यार, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। हालांकि ये बिजनेस में जो फेल है, जो आपकी रिजेक्शन है, ये किसी भी बिजनेस का हिस्सा होता है।
जैसे आप कोई भी शॉप ओपन करते हैं, आपके पास दिन में 10 कस्टमर आते हैं, 15 कस्टमर आते हैं, तो वो सारे आपके पास चीजें खरीदने नहीं आते, ठीक है। कुछ आपके पास वैसे आएंगे, कुछ आपके पास वो चीजों के प्राइस पूछेंगे जाएंगे, और कुछ रियल में खरीदने आएंगे, ठीक है। तो आपने हर कस्टमर को प्रॉपर टाइम देना और रिस्पेक्ट देनी है, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, और आपने पूरी कोशिश करनी है। तो जो कमिटमेंट की है जो है कि आई विल डू वट एवर इट टेक्स, कि इसका मतलब है कि ये मैं बिजनेस करूंगा, जैसे कुछ भी हो। कुछ भी होने का मतलब है कि मैं अगर इस बिजनेस में मुझे कुछ रिजेक्शन मिलती है, या मैं किसी जगह को कुछ पे फ्लॉप होता हूँ, तो ये मैं बिजनेस में नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी अपनी सीरियसनेस के साथ ये बिजनेस करूंगा। और नो डाउट जब ये बिजनेस आप करते हैं इस कमिटमेंट के साथ, आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, किसी भी बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, आपको थोड़ी सी उसमें हार्ड टाइम आता है, थोड़ा उसमें मुश्किल टाइम आता है। तो अगर आपने ये मुश्किल टाइम पास कर लिया, मुश्किल टाइम आपने आपने स्ट्रगल कर ली, मेहनत कर ली, तो आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होते हैं। यस अपलाइन प्लीज। Okay, next. Okay. So next is focus. Okay. So you have to focus on your goal. So when you join this business, okay, you have already your goal. Okay, you have seen already the vision, what will happen to you in this business. So you have to focus on it. Okay. Don't look back. Okay. So whatever that is heavy along the way, okay, let it go. Because if you keep on carrying the heavy things, the heavy load in your life, you cannot focus it. And another thing, how to do with the focus is that don't walk into two sides. Don't walk into just like if there is another company who asks you to join, or they will show you the goodness of the marketing plan and everything, and then you think it's more easier. There's no easy money here. Okay, there's no easy money here. There's no overnight success. Everything comes with the hard work, okay, and determine. So if you focus on your goal, okay, no matter what will happen along the way, okay, you still have to move forward and focus to achieve your dreams. So that's the focus. Just like if you are cooking, okay, if you don't focus on what you're cooking, maybe it will burn it. So same with this business. If you focus on your goal, you focus where are you walking, you focus what you are doing, okay, the great results will come along your way. Okay, assessment. फोकस, फोकस का मतलब है कि हमारी तवज्जो हमारी तवज्जो मुकम्मल तौर पे उस बिजनेस के ऊपर रहे, और हमारा पूरी नजर उस बिजनेस के ऊपर रहे, और हम देखें कि ये बिजनेस में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, और हमने क्या करना है। ये बहुत चीज, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इस हमारी जो कामयाबी में इस बिजनेस के लिए। उसके लिए हमें प्रॉपर हम ऑफिस में इन रहें, अपने बिजनेस में इन रहें। हमारा उसमें जो हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बिजनेस है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, जो हमारा कंपनी है, उसके साथ हमारा पूरा इन टच रहे हम। उसमें पूरा हमारा जो फोकस है, हमारी तवज्जो है, ध्यान है, वो बिजनेस के ऊपर है। बहुत सा होता है कि बहुत सारी और कंपनियां हैं, वो हमें करती हैं कि हमारे पास ज्वाइन हो जाओ, हमारा ये बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो आपका वो फोकस हट जाता है, आपका वो जो ध्यान है उस कंपनी से हट जाता है। हाँ यार, मैं इसको फिर ना उसमें कामयाब होते हैं, ना इसमें कामयाब होते हैं। तो ये है कि आप इस कंपनी में, इस बिजनेस में अपना मुकम्मल तौर पर ध्यान और तवज्जो लगाएं। यस Next अपलाइन प्लीज। one. Okay, next is discouragement. Okay, so whatever you heard in the, and just like this discouragement, let's say your friend, you are inviting your friend, and then he's saying to you that, oh, don't join this business because this business is no good. You don't have future on this business because they will close soon in 2 to 3 years time. They're telling you this. Don't believe in that. Okay, because you already believe in yourself. You have seen already the vision. So no matter what, no matter what is the direct discouragement along the way, because mostly your discouragement is your family, right? Because based on my experience, no one joined. Okay, in my family, in my relatives, no one joined in my business. Even
I show them already what is this business, what good to this business, what product is this business. They don't join at all. But I don't listen to them because I have seen my vision, what will happen to me in 2 to 3 years time. So I keep moving forward. So don't be discouraged. Just believe. Okay. डिस्करेजमेंट ये दो तरह की होती हैं। पहले के ये जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कहते हैं भाई ये तुमने क्या शुरू कर दिया है, ये काम है। क्योंकि आप सबसे पहले आप ये देखें, उन लोगों की बात सुने जो इस बिजनेस में कामयाब हैं, जिन्होंने बिजनेस, आपने कोई भी काम करना है तो आप देखें उसमें जो कामयाब लोग हैं उनके साथ आप उनसे एडवाइस लें, ठीक है। ना कि वो लोग जो इस बिजनेस में नाकाम हैं, जो बिजनेस नहीं कर रहे, उनको इस बिजनेस का बिल्कुल नहीं पता है, ठीक हो गया। और जो लोग इस जो नाकाम है, नाकाम लोग हैं, उनको नहीं पता, तो वो सिर्फ आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो हटाने के लिए होता है, ठीक हो गया। और दूसरी डिस्करेजमेंट ये होती है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जाहिर बात हमारा जो बिजनेस है लोगों के साथ है, हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं और कुछ क्लाइंट्स बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक हो गया। तो आपने वो जो बिजनेस को नहीं ज्वाइन करते, आपने उन बहुत सारी रीजन होगी, वो बहुत सारी आपको देंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, ये है वो है। तो आपने उन उन चीजों को देखना नहीं है, सोचना नहीं है, उनको आपने बिल्कुल आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। यस अप्लाई प्लीज। Okay, fears and doubts. Okay. Anyway, we're almost there. Okay, fears and doubt. Give everybody a chance. Okay, enjoy the process and never don't quit. As I've told you, you have to cast your fears and your doubts with this business because we are already here for 14 years and just enjoy the process. Never quit because even right now, if you are new, if you cannot get a downline to join with you, it's okay. Keep going. No matter what, along the way, you will find. Okay, so don't give up. यस, हियर एंड डोंट्स। किसी भी काम में नाकामी की दो जो बड़ी वजूहात हैं वो यही हैं, खौफ और शक, ठीक हो गया। आप जब आपने अपने आप के ऊपर यकीन है, आप हमें अपने आपका यकीन अपने आप को ऊपर उस टाइम पे होगा जब आपके अंदर जो भी शक है और जो भी शकू शुबात है और जो खौफ है वो खत्म होगा। उसके उसके बगैर आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर सकते। जब आप क्योंकि सबसे पहले हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था कि यकीन, ठीक हो गया। तो जो भी आपके अंदर खौफ है वो आपने खत्म करना है, किसी भी किस्म का इस बिजनेस के मुतल्लिका वो खौफ आपने खत्म करना है। क्योंकि सबसे पहले अपने ऊपर खौफ खत्म करना है कि आपने यकीन करना है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, ये मैं करूँगा। और दूसरा, कंपनी कंपनी 14 साल हो गए कंपनी मार्केट में, और रोज ब रोज कंपनी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक हो गया। और आपके जो इसके साथ है, गिव एवरीबॉडी चांस। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जहां भी यहाँ पे, आप सबको इस बिजनेस के मुतल्लिका बताएं, सबको चांस दें। आपको नहीं पता कि कोई भी बंदा इस वो चांस के इंतजार में बैठा हुआ है, और वो जैसे आपको चांस देंगे वो उसका वो समझ जाएगा और वो आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा, ठीक है। किसी के मतलब आपने ये नहीं सोचना कि इसको मैं चांस दूं या इसको नहीं दूं, सबको अपने बिजनेस के मतलब बताना है, ठीक है। एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि किसी भी चीज में कामयाबी के लिए, हासिल करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। आप उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें, आप उस जो पूरा प्रोसेस है उसको आप उसमें सीखें। उसको ये नहीं कि आप उस प्रोसेस में आप उकताहट का शिकार हो जाए, नहीं, ठीक है। और सबसे अहम बात है, डोंट क्विट। किसी भी कीमत पे हिम्मत नहीं हारनी, ठीक हो गया। जब हिम्मत हारने का मतलब होता है कि आप कहते हैं यार ये मैं काम नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारे लोग हैं वो इसी बिजनेस में कामयाब हैं और हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं। तो आपने किसी भी वजह से हिम्मत नहीं हारनी और बिजनेस को छोड़ना नहीं। अपने पूरी हिम्मत के साथ, अपने पूरी स्ट्रगल के साथ, अपने पूरे नॉलेज के साथ और अपने पूरे यकीन के साथ ये बिजनेस करें, और आप जरूर इंशाल्लाह इस बिजनेस में कामयाब होंगे। यस आप। Master your emotion. Okay, so master your emotion meaning that if
if somebody rejected you, you don't have to cry. Okay, you don't have to worry, because in this world there are billions of people around the world. Your market is not only in Philippines, your market is not only in Pakistan, your market is not only Dubai or in your area. Okay, the world is so big and so round. There are a lot of people that you can connect with. They are your friends or not your friends. So master your emotion. Let your emotion set aside with this, when you are in this business, because sometimes emotion can block your mind. Okay, you cannot think good if you are emotion. You have your emotion because you are stressed. So don't. So you have to master your emotion to keep smiling. Okay, be proud of yourself. Even you rejected 100 times, because this business is a rejection process. Okay. Abs- मास्टर इमोशंस, इसका मतलब यह है कि आपके जो ख्यालात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपने उनको कंट्रोल करना है इस बिजनेस में। ये बहुत चीज अहम होती है। जाहिर बात, आपके जो क्लाइंट्स आएंगे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, वो कंपनी के ऊपर शक भी करेंगे, वो बोलेंगे ये स्कैम है, कुछ भी है। तो आपने बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, या उनको बिल्कुल कहना कि ये इसको बिजनेस पसंद नहीं, इसको नहीं मैं बताऊंगा, नहीं। आपने उनके पूरे सवाल के जवाब देने हैं मुकम्मल, तुमको उनको सेटिस्फाई करना है, क्योंकि यही इस एक बिजनेस में कामयाबी के लिए होता है। ठीक है, हमारा ये काम है कि हम उनके पूरे तौर पर उनको यकीन दिलाएं, जैसा हमें यकीन है अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, वैसे हमने उनको यकीन दिलाना है। ठीक हो गया। तो बिल्कुल भी आपने किसी भी टाइम पे अपने जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो ख्यालात हैं आपके, उनको कंट्रोल में रखना है। बहुत सारे लोग आएंगे, वो आपके दोस्त होंगे, वो आपको बिजनेस में रिजेक्ट कर देंगे, या वो कहेंगे नहीं मैं नहीं करता। तो बिल्कुल भी आपने इस चीज को पूरा नहीं मानना, इस चीज का। आपके वो उनके साथ आपके जो जैसे भी रिलेशन है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, वैसे ही चलेंगे। ये सब। Okay, wear smile and be excited always. Make it as your passion. Okay, make this business as your passion, because right now what you're going to do when you are new. Okay, keep planting. Okay, make this business as your passion, because right after you plant, you will harvest later. What you sow, you reap. So the good thing is that this AIM Global introduced to us this easy consumerism, the good thing of this business. So plan 1 to 2 to 3 years time. It's a long way. Within that time, guys, you can make a big difference in your life. Okay, abs. We're almost there. हर दफा, हर टाइम पे आप जब भी आप बिजनेस ऑफिस जाएं, जब भी आप किसी क्लाइंट को मिले, तो हमेशा हमेशा खुश दिली के साथ मिले। एक चाइना की बड़ी बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपको हंसना नहीं आता, आपको मुस्कुराना नहीं आता, तो आप कारोबार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो हमेशा आप खुश दिली से आप ऑफिस में जाएं, खुश दिली से अपना तो ये कारोबार करें, और खुश दिली से मुस्कुराहट के साथ आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको मिले, और उनको रुखसत भी करें, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन लेके जाएं आपके साथ। ठीक है। और दूसरा ये है कि बिजनेस को पैशन बनाएं। जो भी आपका बिजनेस है उसको पैशन बनाएं, क्योंकि पैशन के बगैर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। वही चीज है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारी कमिटमेंट है, कमिटमेंट और पैशन, ये इनमें एक बड़ा गहरा अलग होता है कि मैं जैसा भी हो, कुछ भी हो, मैं ये करूंगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये आपका पैशन होना चाहिए, ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और आप इसको शौक से काम को करें। आप इस काम को शौक से करें और आपको खुश होके काम करें, तो आप इस काम में वाकई करने का मजा आएगा, और आपको इसको कामयाबी भी मिलेगी। यस आप प्लीज। Okay, law of gratitude. Okay, so we always be thankful of what we have. Right now, if you are still new, when you are still only earning a small one, you still have to be thankful. Okay, because small things will grow. Okay, just like we are planting now, we plant small seed and it will grow to become a tree. So always be thankful. So every time you wake up in the morning, you always be grateful and say thank you for all you have, and even you sleep at night. So always be grateful of what you have. Okay. Next.
लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब है कि हमेशा आप शुक्रगुजार रहें अल्लाह ताला के, खुदा के और अपने आप के। क्योंकि आप अगर आप अपने अराउंड में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो आप हजारों से, सैकड़ों से, हजारों से, लाखों से, करोड़ों से अच्छे हैं। और जैसा कि अल्लाह ताला कहता है कि अब तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मैं तुमको और दूंगा। तो हमेशा आप शुक्रगुजार रहें, ठीक है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत ही अच्छी जिंदगी दी है। और ये जो कंपनी है, जो जो बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक शुक्रगुजारी ही है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमें दी और हमने ये बिजनेस कर रहे हैं, हम इस बिजनेस का हिस्सा है। Next up. यस प्लीज। Step up and take massive action. Now that you're here, you're already a member of Amy Global. You have seen already what is going to happen. Okay, you have seen the vision. Okay, take a massive action. Don't waste your time, because time is precious. Because the time that you left behind, you can never return it back anymore. So do it now, most especially now that we are in quarantine. And then when the lockdown is finished, we have to move forward, work fast, and do this action. Okay. स्टेप अप एंड टेक मैसिव एक्शन। आप जब जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह पे आपने ये रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। ये नहीं कि मैं, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, अगर मैंने ये बिजनेस अचीव कर लिया। आपने हमेशा आगे से आगे स्टेप लेने हैं, आगे से आगे आपने काम करते जाना है। अगर आपने रोजाना आज आपने एक बंदे से बात की है, तो कल आप कहें कि मैंने अपने 2 क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, उनको मैंने बिजनेस के मुतालिक बताना है। अगर इस महीने में एक बिजनेस एक आदमी ने ये बिजनेस ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट मंथ में 2 बंदे ज्वाइन करेंगे या 4 बंदे ज्वाइन करेंगे। इसमें यह भी है कि आपने, अगर आप प्रोडक्ट्स है वो एक सेल की है, तो आपने आपको नहीं, मैंने नेक्स्ट मंथ में 2 सेल करनी है या नेक्स्ट वीक में और ज्यादा मैंने सेल करनी है। तो इसके साथ साथ आपने अपने बिजनेस के मतलब का जो नॉलेज है उसकी आपने इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। कि आपने आगे से आगे जाना है और आगे से आगे जाने का ही सोचना है। और उसके साथ आगे से आगे जाने के साथ आपको एक लाजमी है कि एक भरपूर एक्शन लें, भरपूर एक्शन के साथ आगे जाएं। यस आप। Make your own dream board. Who among you have make their own dream board already? Okay, you have to put your dream board here. Just like how many years you want to achieve, is your what is your goal, what you want to have. Okay, so you put all in your dream boards here, and then you're gonna talk with your dream board every single day of your life. Just believe, because with that word alone, okay, the universe can hear on you, okay, and it will happen. Because I remember when I proclaimed myself, I can be also one of the millionaire circle, and it happened in just 2 years time. So guys, this is very powerful to make your dream board. So try it. Why not? Nothing is impossible here in AIM Global, because I have a dream board as well here in my room. मेक योर ऑन ड्रीम बोर्ड। इसका मतलब है कि आपके जो भी आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, ठीक है, आपको एक अच्छा मकान चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा एक कारोबार चाहिए, आपका कोई बहुत सारे और दूसरे जो आपके ख्वाब हैं, ठीक हो गया। उनको सबको आप अपने एक बोर्ड बनाए, उसके ऊपर उनको 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 वहां पे उनके ऊपर उनका मेंशन करें कि ये मेरे ड्रीम्स हैं। और साथ में आप वहां पे मेंशन करें कि हाँ, इन ड्रीम्स को मैंने नेक्स्ट 5 साल में या नेक्स्ट 2 साल में या अगले 10 साल में मैंने ये ड्रीम्स अपने पूरे करने हैं, ये मैं काम कर रहे हैं। यकीन करें कि ये आपको एक हमेशा आपको एक अंदर से आपको एक मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पैशन मिलेगा, आपके पैशन में इजाफा होगा। आप उस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और वो हमेशा आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। आपको अंदर से हमेशा आपको एक
हमें लगे हाँ यार ये मेरा ख्वाब है, ये मैंने ख्वाब अपना पूरा करना है, तो आप Okay. अपना एक ड्रीम बोर्ड बनाएं, जो भी आपका ड्रीम बोर्ड है वो आप ड्रीम बोर्ड बनाएं और हम हमेशा उसको फॉलो करें अपने ड्रीम को। जब सर प्लीज। Materials that are materials that we need. Okay, you must have a pen, you must have notebook, you have clear book, brochure, okay, videos, application forms. Because here in Dubai, what we are using is we sometimes we are using also flyers, but our flyers is very small. It's just like your calling card. We're using this one to prospect. Okay, so you must have the business card, and then observe your looks and your attire. Because for us, if we go to the office, we talk with the clients. We have to. It's not that you are going to wear a very nice attire, but at least it's very presentable to the clients that you are going to share with the business. Make sure that you look really a professional businessman and businesswoman if you go and meet with your clients. Okay, so you must have also your notebook. Okay, you must have your pen for you to get down all the details of the person you're going to talk to. And if you go on training as well, I've said just now, you must have to list down the most important thing that you needed in this training. Okay. हाँ जी, इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों आपको फोकस करना चाहिए, उनमें ये है कि सबसे पहले आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक बहुत अहम चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी की जो लुक है वो अच्छी हो। तो आपकी जो प्रोफेशन लुक हो, ये नहीं कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहने हो, महंगे कपड़े पहने हो, या अगर आपके पास बड़ी महंगी घड़ी हो या शूज़ हो, जूते हो, ये नहीं है कि आपकी जो लुक है वो थोड़ी प्रेजेंटेबल हो, अच्छी हो, आपकी प्रोफेशनल नजर आए। ठीक है, तो इस बिजनेस में ये चीज़ बड़ी अहम है कि हम इस बिजनेस में आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो भी साथ साथ होती है, क्योंकि इस बिजनेस का जो तल्लक है वो लोगों के साथ है। हमने लोगों को बिजनेस के मुतल्लिक़ बताना होता है, तो ये चीज़ हमारी इसमें चीज़ में बहुत अहम है और हम इस चीज़ में बड़ा सीखते हैं। और इस बिजनेस में स्पेशली आके आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें साथ में आपको जो आपके विजिटिंग कार्ड है, ज़ाहिर बात आप कहीं आ जा रहे हैं, किसी से मिलना है, तो आपका जो विजिटिंग कार्ड वो आपके पास होने चाहिए बिजनेस के। ठीक है, वो आपके साथ एक अच्छा सा पेन हो, एक नोटबुक हो, फिर आपके पास जो कंपनी का है वो जो कंपनी का प्रोफाइल हो, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, वो सारा उसका वो आपके एक ब्रोशर फॉर्म में हो। ठीक है, ताकि आप किसी भी जगह किसी भी आपको उसको इजीली आप बता सकें। और साथ में अगर आपके पास लैपटॉप है या फोन है या टैब है, उसमें आपके पास बहुत सारी जो इस कंपनी के मतलब का जो वीडियोस हैं, इनके जो इवेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप किसी भी जगह पर आप जाएं तो आप उनको इस कंपनी के मतलब अच्छे तरीके से बता सकें। और साथ में जब आपने डील क्लोज करनी होती है तो जाहिर बात आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, तो आप अपने पास एप्लीकेशन फॉर्म भी रखें। यस आप प्लीज। Okay, next, this is your skill. So this is the last one, guys. You are almost there. Okay, so all you have to do is with your skills. Okay, make a prospect list. Who among you has a note to list down your prospect list? Okay, this prospect list is that for you to jot down the names of your prospect. Let's say is from Nigeria. Okay, so you can sort it out. Put down the date. Put on the day when you meet this person, if it's positive or negative, then you can sort it out with your prospect list. Okay, and then next is the how to invite, types of invitation, okay, types of presentation, apply ABC rule, just what we have just now, apply 24 to 48 hours rule and goal settings. Okay, I think this one we are going to tackle it next time with these skills because that takes a long way to go with this one, applying Ismael. And I know that you are almost there for the iftar, yeah? So just Yes, make yes. a draft on this one, okay? Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये हमारी जो स्किल्स हैं, स्किल्स में ये है कि आपने किन किन को आपने कैसे आपके जो
क्लाइंट्स हैं उनकी इन्वेस्ट कैसे बनानी है, और जो क्लाइंट्स उनको कैसे अपने उनकी इसको मेंटेन करना है, और कैसे अपने लोगों को इनवाइट करना है, कैसे अपने लोगों को बिजनेस के मतलब बताना है, और कैसे अपने लोगों को बिजनेस को प्रेजेंट करना है। ठीक हो गया। और ये एक बहुत ही एक अलग से टॉपिक है, एक अलग से है, तो इसके मतलब हम आप नेक्स्ट किसी सून ही हम ये इसके मतलब का एक आपके पास आएंगे। ठीक हो गया। प्रेजेंटेशन लेके कि आपने कैसे आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपने किन किन को अपने बिजनेस कैसे बिजनेस अपने लोगों को बताना है, कैसे उनको इनवाइट करना है, कैसे उनकी आपने उनको फॉलो अप करना है, वो सारा इसके मतलब आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Okay. Thank you, Absme. You are done. And thank you to all leaders and invites. Thank you for joining us. Hope that you learned something from our presentation.